Good morning. Today we will study birth injuries. First of all, definition. Birth injuries are defined as avoidable and unavoidable mechanical or hypoxic ischemic injury occurred by an infant during labor and delivery. In simple words, we can say birth injuries are the defects or injuries that are caused before, during and immediately after birthing process. मतलब बर्थ के पहले, बर्थ के ड्यूरिंग लेबर और आफ्टर डिलीवरी जो इंजरीज़ बेबी को होती है उन्हें बर्थ इंजरी कहा जाता है। और उनके कॉज क्या होते हैं? मैकेनिकल इंजरी हो सकती है बिकॉज ऑफ यूज़ ऑफ फोर्सेप और वेंटोस डिलीवरी। और हाइपोक्सिक इश्चेमिक इंजरी, हाइपोक्सिया मीन्स व्हेन देयर इज लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन एंड इश्चेमिक मीन्स व्हेन देयर इज when blood supply is hampered, मीन्स जब किसी पर्टिकुलर पार्ट को, जैसे ब्रेन को, ब्लड सप्लाई हैम्पर हो जाता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन कम मिलता है ब्रेन के टिश्यू को, जिस वजह से वहाँ पे न्यूरोनल डैमेज होता है, न्यूरॉन्स का डैमेज होता है और फ्यूचर में जिस पार्ट को वो न्यूरॉन कंट्रोल करते हैं उसमें इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी। और अपार्ट फ्रॉम इमीडिएट प्रॉब्लम, बर्थ इंजरीज आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हैंडीकैप्स इन लेटर लाइफ। कुछ बर्थ इंजरी है जिनका इमीडिएट इफेक्ट है, जैसे कि सिफेलोहेमेटोमा और कैपुट सक्सीडेनम, जो बर्थ की इमीडिएट बाद हमें नोटिस कर सकते हैं। और कुछ इंजरीज जैसे हाइपोक्सिक इश्चेमिक एन्सेफेलोपैथी, उनका लेटर लाइफ इफेक्ट देखने को मिलता है, जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी। उनकी बर्थ इंजरीज आर कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट इज़ बर्थ एस्फिक्सिया, सेकेंड इज़ मैकेनिकल इंजरीज। बर्थ एस्फिक्सिया जब will be discussed later. Now we will discuss mainly mechanical injuries. Now, risk factors for mechanical injuries. First is primary parity. जो लेडी फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है उसको प्राइमरी पैरा कहा जाता है। सेकेंड इज स्मॉल मैटरनल स्टेचर, व्हेन हाइट ऑफ मदर इज लेस देन 145 सेंटीमीटर। मैटरनल pelvic anomalies और prolonged or unusually rapid labor, they are also the reason for birth injuries. Oligohydramnios, due to oligohydramnios baby can't rotate and labor doesn't progress in a proper manner. Malpresentation of the fetus, use of forceps and vacuum extraction, very low birth weight or extreme prematurity. Fetal macrosomia, when the fetal head size is very large, for example in diabetes, and fetal anomalies. Now prevalence. The prevalence of birth injuries 2 to 7 per 1000 live birth, accounting for 2 to 3% of neonatal deaths. Common birth injuries are head and neck injury, nerve injury, facial injuries, fracture, intra-abdominal injuries, soft tissue injuries. First of all, we will study head and neck injuries. Head and neck injuries are also divided into three parts: extracranial, cranial and intracranial. मतलब extracranial में outside the skull, mainly in skin, muscle, etc. Cranial means related to skull bone. Intracranial मतलब inside the skull. Meninges, brain may be involved in this. Before studying this head and neck injuries, we will study the layers of scalp. As you know, the scalp, S for skin, C for connective tissue, A for aponeurosis, galeal aponeurosis, L for loose alveolar tissue, P for pericranium. स्कल की लेयर्स में लोकेशन ऑफ इंजरी के बेस पे उनको अलग अलग नेम दिया गया है। सो इसलिए स्कल के जो स्काल्प की जो लेयर है उनका ये हमें पता होना चाहिए: स्किन, कनेक्टिव टिश्यू, एपोनेरोसिस, लूज एरियोलर टिश्यू एंड पेरिक्रेनियम। एक्स्ट्राक्रेनियल इंजरी में सबसे फर्स्ट है कैपुट सक्सीडेनम, सेकेंड इज सिफेलोहेमेटोमा, थर्ड इज सबगैलियल हेमोरेज. We will study them one by one. You can see here caput succedanum is upper periosteum.
it generally involves skin, loose connective tissue, etc. Or subgaleal hemorrhage is below this galeal aponeurosis. The third layer, as you know, the third layer of scalp is aponeurosis, SCA. A is for aponeurosis. So subgaleal aponeurosis के नीचे जो और पेरियोस्टियम के ऊपर जो ब्लीडिंग है वो सबगैलियल हेमोरेज है. और सिफेलोहिमेटोमा पेरियोस्टियम और वून के बीच में जो स्वेलिंग है, जो ब्लीडिंग है, वो सिफेलोहिमेटोमा है. Caput succedaneum. Caput succedaneum is a serosanguinous fluid collection above the periosteum. Means serosanguinous fluid collection. Serum as well as blood collection is there. It presents as soft tissue swelling with purpura and ecchymosis over the presenting portion of the scalp. It may extend across the midline and across the suture line. The important thing here is caput succedaneum can cross the suture line because the swelling is superficial. So it can cross the suture line. The edema disappears within the first few days of life. It appears immediately after delivery and it appears in first few days of life. Rarely a caput may be hemorrhagic and may result in shock and require blood transfusion. Management. No specific management is needed. If extensive ecchymosis is present, then hyperbilirubinemia may be present there. Means अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है और वहाँ पे स्कल में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है कैपुट में, तो हाइपरबिलिरुबिनेमिया मतलब न्यूनेटल जॉन्डिस के चांसेस इंक्रीज़ कर जाते हैं. अगर शॉक हो जाता है, अगर ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम वहाँ पे, क्योंकि वो सीरोसैंगुइनस कलेक्शन है, अगर ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा कलेक्ट हो जाता है तो बेबी शॉक में जा सकता है, जिसके लिए हमें ब्लड ट्रांसफ्यूशन करना पड़ सकता है. सेकेंड इज सिफेलोहिमेटोमा. सिफेलोहिमेटोमा इज ए सब पेरियोस्टल कलेक्शन ऑफ blood caused by rupture of vessels beneath the periosteum. As you know, in the scalp, SCALP, last layer is periosteum, then is wound, skull. तो पेरियोस्टियम और बोन के बीच में जो ब्लीडिंग है उसको हम कहते हैं सिफेलोहिमेटोमा. क्लिनिकल फीचर. स्वेलिंग यूजुअली ओवर पैराइटल और ऑसिपिटल बोन. Swelling does not cross a suture line. The most important clinical feature is swelling कभी भी suture line को क्रॉस नहीं करता, क्योंकि पेरियोस्टियम एक पर्टिकुलर बोन के ऊपर बाउंड है, तो एक पर्टिकुलर बोन के ऊपर ही स्वेलिंग होगा. लिमिटेड टू सरफेस ऑफ वन क्रेनियल बोन. सिफेलोहिमेटोमा और कैपुट को हम इसी बेस पे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कैपुट जो है वो सुचर लाइन को क्रॉस करता है, क्योंकि वो सुपरफिशियल है, लेकिन जो सिफेलोहिमेटोमा है वो सुचर लाइन को क्रॉस नहीं करता, क्योंकि वो ऊपर से पेरियोस्टियम से बाउंड है और पेरियोस्टियम एक बोन के ऊपर लिमिटेड है. डायग्नोसिस. फिजिकल एग्जामिनेशन से स्कल रेडियोग्राफ, क्रेनियल सीटी. डिफरेंशियल डायग्नोसिस. जो सिफेलोहिमेटोमा है उसको हम इंट्राक्रेनियल ब्लीड से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे. जो इंट्राक्रेनियल ब्लीड है वो पल्सेटाइल और क्राई पे इंक्रीज़ कर जाता है, और साथ के साथ क्योंकि जो इंट्राक्रेनियल ब्लीड है वो किसी स्कल फ्रैक्चर की वजह से हुआ होगा, तो वहाँ पे बोनी डिफेक्ट भी एक्सरे में दिख जाता है इंट्राक्रेनियल ब्लीड में, जैसे सब एरिकनॉइड हेमरेज, ड्यूरल हेमरेज, सब ड्यूरल हेमरेज एक्सेट्रा, जो है उनमें क्राई करने पे वो इंक्रीज़ कर जाएगी स्वेलिंग और पल्सेटाइल नेचर की होगी, जबकि सिफेलोहिमेटोमा में क्राई करने पे स्वेलिंग इंक्रीज़ नहीं होगी और ये पल्सेटाइल नहीं होगी. कॉम्प्लिकेशन क्या है सिफेलोहिमेटोमा की. एनीमिया, हाइपरबिलिरुबिनेमिया और इन्फेक्शन. अगर हम उसको एस्पिरेट करें तो वो इन्फेक्ट भी हो सकता है. मैनेजमेंट. एस्पिरेशन और सर्जिकल ड्रेनेज ऑफ सिफेलोहिमेटोमा इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड टू अवॉइड रिस्क ऑफ इन्फेक्शन. नो इंटरवेंशन इज नीडेड इन स्मॉल हिमेटोमा. अगर हिमेटोमा लार्ज है तो अकॉर्डिंग टू सिम्टम ट्रीटमेंट किया जाता है. अगर सेप्सिस है तो एंटीबायोटिक, और हाइपरबिलिरुबिनिया मीन्स न्यूनेटल जॉन्डिस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया तो और फोटोथेरेपी रेंज में आ गया तो हमसे फोटोथेरेपी देना पड़ेगा. नेक्स्ट इज सबगैलियल हेमोरेज. एज वी नो, सबगैलियल हेमोरेज इज ब्लीडिंग बिटवीन द गैलियल एपोनेुरोसिस ऑफ द स्कैल्प एंड पेरियोस्टियम. SCALP again. A means aponeurosis,
L मतलब लूज एरियोलर टिश्यू, P इज़ लूज कनेक्टिव टिश्यू, P इज़ पेरियोस्टियम। सो जो स्वेलिंग है वो एपोनेुरोसिस से लेके पेरियोस्टियम के बीच की स्वेलिंग है। आप जो सेकंड स्लाइड में सेकंड पिक्चर में देख सकते हैं, पेरियोस्टियम के ऊपर है और गैलियल एपोनेुरोसिस के नीचे है स्वेलिंग। फीचर्स क्या है? अ सबगैलियल हेमोरेज प्रेजेंट एज ए फर्म टू फ्लक्चुएंट मास दैट क्रॉसेज द सूचर लाइन। सबगैलियल हेमोरेज भी सूचर लाइन को क्रॉस करता है, लाइक कैपुट। बट हम इसको कैपुट से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? जो सबगैलियल हेमोरेज है उसमें आईलिड्स के ऊपर स्वेलिंग होती है, बैक ऑफ नेक पे स्वेलिंग होती है और एक ब्लूइश डिस्कलरेशन होती है। इसमें जो आइज़ है वो बिल्कुल रेड कलर की होती है, जिनको रैकून आइज़ कहा जाता है। तो द मास इज़ टिपिकली नोटेड विद इन 4 आवर्स ऑफ द बर्थ। जो सबगैलियल हेमोरेज है तो एपोनेुरोसिस पूरे स्कल को कवर करता है। तो सबगैलियल हेमोरेज में बहुत ज़्यादा स्पेस है ब्लड को ऑक्यूपाई करने के लिए, इसलिए इसमें बेबी शॉक में जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ये लगभग 40% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम जो बेबी का है वो यहाँ पे ऑक्यूपाई हो सकता है। सो हमने सबगैलियल हेमोरेज, सेफेलोहेमेटोमा और कैप्यूट को डिफ्रेंशिएट करना। फर्स्ट ऑफ ऑल सूचर लाइन को क्रॉस नहीं करेगा सिर्फ और सिर्फ सेफेलोहेमेटोमा में, सूचर लाइन को क्रॉस करेगा कैप्यूट में और सबगैलियल हेमोरेज में। कैप्यूट जो है वो सुपरफिशियल स्वेलिंग होगी और उसमें आईलिड के ऊपर या बैक ऑफ द नेक पे कोई एकाइमोसिस वगैरह नहीं होगी। जबकि सबगैलियल हेमोरेज में आई जो है बिल्कुल रेड कलर की होगी, ब्लीडिंग जो है वो आइज़ में भी दिख जाएगी और फोरहेड पे, आइज़ पे, बैक ऑफ द नेक, टेम्पोरल रीजन सब जगह ब्लीडिंग एकाइमोसिस होगा। सो इन दिस वे वी कैन डिफरेंशिएट दीज 3 टाइप ऑफ हेमोरेज। Now, laboratory finding in subgaleal hemorrhage. Serial hemoglobin and hematocrit monitoring, coagulation profile and bilirubin level, 3 चीज़ें हम इसमें चेक करेंगे। ट्रीटमेंट मेनली सपोर्टिव। अगर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस है तो हम उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। सीवियर केसेस में अगर कोई ब्लड वेसल से ब्लीडिंग हो रही है तो हम उसे कॉट्राइज करना पड़ सकता है। दिस लीजन टिपिकली रिजॉल्व ओवर 2 to 3 weeks. You can see the subgaleal hemorrhage. Here you can see swelling over face, forehead, eyelid, pitting edema, periorbital swelling, shock, multi-organ failure. Next is head and neck injury में फर्स्ट हमने स्टडी किया एक्स्ट्रा क्रेनियल इंजरी, जिसमें था कैपुट, सेफेलोहेमेटोमा, सबगैलियल हेमोरेज। अब सेकेंड इज क्रेनियल इंजरीज। क्रेनियल इंजरीज में रिलेटेड टू स्कल बोन्स यूजुअली अफेक्ट्स द पैराइटल बोन्स। इसमें जो इंजरीज हैं वो 2 टाइप की है, लीनियर स्कल फ्रैक्चर एंड डिप्रेस स्कल फ्रैक्चर। लीनियर स्कल फ्रैक्चर फर्स्ट, तो इसमें क्या है, मेनली अफेक्ट्स द पैराइटल बोन और पैथोजेनेसिस रिलेटेड टू कंप्रेशन फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेप्स, स्कल पुशिंग अगेंस्ट मैटरनल सिम्फाइसिस। इसमें जो इंजरी है वो एक लीनियर, एक लाइन की फॉर्म में, और जो आउटर लेयर टू इनर लेयर सब इन्वॉल्व होता है। लेकिन रेयरली a linear fracture may be associated with dural tear with subsequent development of a leptomeningeal cyst. जो लीनियर स्कल फ्रैक्चर है उनकी बहुत कम इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि वे क्रैक ही अलोंग द लाइन, वो मोस्टली ड्यूरा मैटर तक नहीं पहुंच पाते। रेयरली वो जब पहुंचते हैं तो वो लेप्टोमेनिंजियल सिस्ट फॉर्म करते हैं। लीनियर स्कल फ्रैक्चर तभी इम्पॉर्टेंट है जब वो सूचर के एरिया में हो या किसी वीनस साइनस के ऊपर हो जहाँ पे ब्लीडिंग के चांसेस हैं। अदरवाइज़ इनकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, उनकी कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। सेकेंड इज डिप्रेस स्कल फ्रैक्चर्स। डिप्रेस स्कल फ्रैक्चर होता है ड्यू टू ब्लंट ट्रॉमा। इंडिकेशन फॉर सर्जरी इंक्लूड रेडियोग्राफिक एविडेंस ऑफ बोन फ्रैगमेंटिंग, क्योंकि एक ब्लंट ट्रॉमा की वजह से जो फ्रैगमेंट है वो ब्रेन के अंदर तक ब्रेन के सरफेस तक मिल सकते हैं, क्योंकि वो क्रश हो चुका है एक तरह से। प्रेजेंस ऑफ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स, क्योंकि इसमें सेरेब्रम को इरिटेशन है, सेरेब्रम को भी इंजरी हो सकती है, इसलिए इसमें न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट आ सकते हैं। साइंस ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर ड्यू टू इरिटेशन ऑफ ब्रेन टिश्यू। साइंस ऑफ cerebrospinal fluid beneath the gallia, because due to crushed injury the cerebrospinal fluid may come out of this injury and may fill the space beneath the gallia.
नेक्स्ट इज इंडिकेशन फॉर नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट। जब डिप्रेशन लेस देन 2 सेंटीमीटर हो और विदाउट न्यूरोलॉजिकल सिम्टम हो तो उसकी सर्जिकल मैनेजमेंट की नीड नहीं होती। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद वी कैन कॉल इट शिरोघात उपशीर्षक। मतलब हम जो बर्थ इंजरीज है, स्कैपुटेरिया, सिफेलोहेमाटोमा, इनको हम उपशीर्षक के अंडर ले सकते हैं। उपशीर्षक का क्या मतलब मतलब ऊपर, शीर्षक मतलब सर के ऊपर दूसरा सर है, ऐसा फील होता है। तो उपशीर्षक का वर्णन जो है भागवत ने 9 प्रकार की कपाल व्याधियों में किया गया है। इसके बारे में क्या कहा है भागवत ने? कपाले पवने दुष्टे गर्भाशस्तपि जायते सवर्णो निरुजः शोफस्तम विद्यात उपशीर्षकम। गर्भस्थ बालक के कपाल में वात के दूषित होने पर त्वक वर्ण का, सवर्णो निरुजः, ये इम्पॉर्टेंट है, मतलब स्वर्ण त्वचा के वर्ण का जो शूल रहित शोफ होता है उसे उपशीर्षक कहा जाता है। ऐसा लगता है कि सर के ऊपर दूसरा सर है। इसमें ट्रीटमेंट क्या है? पक्वे करम विद्रति च उदितम, मतलब जो पाक, जब इसका पाक हो जाए तो विद्रधि के समान इसकी चिकित्सा करनी है। उपशीर्ष के जन्मोत्तर काल जो चित्ते बात व्याधि भीतम स्नेह पान नावन अभ्यंजनेषु योजेत अभ्यक्तम च स्नेहितो स्वेदितो उपनाहेत यथा विदाहो न भवति विदाहे विद्रधि करमवत। जो नूतन एवं जन्म के बाद जो उत्पन्न उपशीर्षक है उसमें पहले क्या वात व्याधि की चिकित्सा करनी चाहिए, पक जाने पर विद्रधि में बताई गई चिकित्सा करें। वात व्याधि की चिकित्सा में हम क्या करते हैं? स्नेहन, स्वेदन, विमलापन मतलब एक तरह से पिघलाने के लिए जो हम उसको करते हैं, जिससे उत्सेद दबकर बैठ जाता है। जब ये पक जाए तो उसमें विद्रधि की चिकित्सा करनी चाहिए। थैंक यू।